Hello everyone. Today I will talk about a new topic that is iterating over a data frame. So iterating means looping over a data frame. Now whenever we talk about looping in Python, there are two loops. One is for and the other is while loop. But when we talk about iteration or looping over a data frame, we will talk about for loop. Okay. So let me take you to the notes. Let's see what iteration is. So I've got the notes. Let me highlight this iteration. Okay. Iteration is a general term for taking each item of something one after another. So, for example, a data frame has got rows and columns. So, when we take every item, that is every row and every column separately, that is known as iteration. Okay. So, uh, when we iterate over a data frame, there are three functions defined for it. So, I'll talk about the first function, itr items all in small letters. Then we have ITR rows again all in small letters. Then we have got ITR tuples again all in small letters. Okay. Now all these three functions, they have their own work. We'll talk about these functions one by one. So before I proceed, let's look at this one. Iterating a data frame gives column names. Whenever we iterate over a data frame, वो क्या दिखाएगा हमें column name दिखाएगा. So let us create one data frame in Python. So what I have done is that I've already created one data frame. I'm just going to copy and paste the code. So I have this code written. I'll just copy this. Okay. I'll go to Python. I'll just paste it. Okay. The name of the data frame is df2. So I have written df2. Okay. Now this is the data frame we have got. The the column name is target sales location. The column is there. Then I've got row the row index zone A, zone B, and I've got zone C, then I've got zone D, and we have got certain values inside it. So when we talk, I'll just simply write for I. I is the name of a variable. Let me highlight it. You can take any name, doesn't matter, but I is used most of the time. So that is why I in is a keyword. You have to write it. This is a part of the syntax. Then the name of the data frame is df2. Okay, then I'll give a colon sign. ये भी दिस इज कोलन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिंटैक्स. सो आई क्या हो गया, आई वेरिएबल नेम हो गया. आप कुछ भी दे सकते हैं. इन इज द कीवर्ड ऑल इन स्मॉल लेटर्स. फिर df2 इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम. जो भी नेम रहेगा आई गिव इट देन कोलन साइन. नाउ लेट मी हिट एंटर. सी द कर्सर हैज कम हियर. दिस इज नोन एज इंडेंटेशन. तो जब भी आप लूप के बाद व्हेन यू प्रेस एंटर there will be a kind of indentation. Okay, now let me write the code. Let me print I. So what did I say? जब आप print, when you use iteration or looping over a data frame, what does it give? It gives a column name. Okay, so let me hit enter. So if you see here the output, we have got target, then we have got sales, then we have got location. So these three are the column names. We have got target, we have got sales, we have got location. Okay, so now let's move to the function. I'll talk about the function one by one. So let me take it the notes. Okay, this is the first function that I will talk about. This is ITR rows. Okay, I'll just go down. Okay, okay, let's talk about ITR items. It iterates. Okay, it iterates over vertical subsets in the form of column index series pairs. तो ये हमारा क्या करता है, ये लूपिंग करेगा वर्टिकल सबसेट के फॉर्म में, and it will give us column index series pairs. So let me talk about this. Then I will move to ITR rows. So ITR items. So I've got df2 data frame. Let me use ITR items. So for I, comma j, I'm using two variable names I, comma j. Why? I will tell you why.
I will write the name of the data frame df2 dot itr items. Okay, ये see, I'll just highlight this. ये signify करता है कि this is a function. Now, how to access this function? The name of the data frame dot itr items. Okay, and then I will press enter. Now, I stores column names and J stores row index and column values. Now remember one thing, this ITR items iterates vertically. Vertically का मतलब है जैसे ये हमारा कॉलम नेम हो गया टारगेट, तो ये करेगा ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में 50,000 then 67,000 then 80,000 then 90,000. This is how it will be done. तो let me print I and J separately. मैं पहले प्रिंट आई करता हूँ. तो मैंने क्या बोला था कि आई विल स्टोर व्हाट, आई विल डिस्प्ले द कॉलम नेम्स, target, sales or location. These column names will be displayed. Okay, here please remember that J मैंने use किया है, अभी I'm not using it, so I'll use it later on. I will let you explain. So let me hit enter and look at the output here. We have got the column names here. Okay, let me repeat the command. How do we do it? Alt P. We press Alt P. Now instead of I will type J. Now what it is, J में हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा, this row index will be there. There will be two values, this row index and then the values 50,000. Then again zone B, then we will have 67,000. सारा vertically हो रहा है. Then we will have zone C, then I'll have 80,000. Then we will have zone D, then we will have 90,000. Okay, so let me print J. Okay, now look at the values. Okay, so I stores what? Let me write it. Okay, we have used two variables. Okay, we have used two variables, I and J. I, J in ITR items. Okay, ITR items function. I stores column name. That is target, then sales and location. J stores row index. J stores two values. First is row index and column values. और ये जो होता है it iterates vertically. ITR item से जब iteration will take place, it will be vertically. Okay, this is we saw it, very simple. So ITR items क्या करता है, it iterates over a data frame vertically in a column index series. Okay, this is I've written the definition. I'll paste this in the description box. Okay, so I'll just remove everything. So ITR items, it iterates with vertical subsets in the form of column index series pairs. Okay, understood. Now let's talk about ITR rows. ये क्या करता है? It iterates over horizontal subsets. मैंने highlight कर रखा है in the form of row index series pairs. ये क्या करता है? Horizontally करेगा. Let's see how. So again, let me print df2. अब मैं iteration करूँ for I, j in df2 dot itr rows मैंने किया. Give this colon sign. Now print I. Let me print I. So जब मैं I print करूँगा तो what will it display? It will display the row index. जैसे zone A, zone B, zone C और zone D हमारा output आएगा. लेकिन ITR items के साथ what we were getting the column names. So let me hit enter. So we have got it. Now let me print that J. Okay. J में हमारा क्या आएगा? ये this will be in a horizontal fashion. So ये हमारा ऐसे आएगा. मतलब ये पहले तो J will have two values. One is the column names, that is target, then 50,000.
then sales 40,000, then location Delhi. Let me hit enter. ओके, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली करता है। तो मैंने एंटर किया, प्रेस, आप देखो टारगेट हो गया 50,000, फिर सेल्स आया 40,000। ये डिफरेंट लाइंस में आउटपुट आ रहा है, बट हाउ इज इट डूइंग इट? इट इज डूइंग horizontally. Now let me print I and J all at one go. Okay, तो मैं क्या करता हूँ, I comma J, let me okay, let me hit enter. This is how we have got I में हमारा zone A हो गया और J में हमारा क्या आ गया, two values are there in J, target and 50,000. Again for zone A the entire thing will be printed in a horizontal manner. ठीक है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ so that you don't have confusion. Let me go to the data frame. Okay, तो जोन है इसने प्रिंट किया, ये सारा इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रिंट किया। अगेन इट विल गो फॉर जोन बी, फिर इसको सारा हॉरिजॉन्टली सारे वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा। सिमिलरली फॉर जोन सी इट विल डू हॉरिजॉन्टली, and then for zone D it will do horizontally. So let's look at the definition. रो इंडेक्स सीरीज पेयर्स में करता है ये, ठीक है। अब मैं जरा ITR आइटम्स के साथ आई डिड नॉट यूज, लेट मी यूज दिस फॉर ITR आइटम्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ITR आइटम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑल्ट पी मैंने किया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं रोज की जगह क्या कर दूं, ITR आइटम्स कर दूं, तो ये क्या करेगा, वर्टिकली करेगा। जैसे आपको मैं आउटपुट, लेट मी शो द आउटपुट। सो टारगेट एंड जोन, लेट मी प्रिंट DF2 हियर। ओके, सो हाउ इज इट प्रिंटिंग, टारगेट पहले तो आई में हमारा कॉलम नेम होगा, जे में दो वैल्यूज रहेंगे हमारे, जोन ए देन 50,000। देखो ये कैसे कर रहा है, फिर विल हैव जोन बी एंड 67,000, वर्टिकली कर रहा है, देन जोन सी एंड 80,000, देन इट इज डूइंग जोन डी एंड 90,000। ओके, तो यहाँ पे लेट मी हाईलाइट दिस, ऑल इट इज वर्टिकली प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग द वैल्यू। ओके, तो आप समझ गए, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने दो वेरिएबल ले रखा है, आई में हमारा क्या रहेगा, अगर ITR आइटम्स के साथ यूज कर रहे हैं तो आई में वी विल हैव कॉलम नेम्स, और जे में क्या रहेगा हमारा, रो इंडेक्स रहेगा और कॉलम का वैल्यूज रहेगा इन अ वर्टिकल मैनर। सो दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू take care of, that you have to keep notice of, you can say. Now let's talk about the third function, which is ITR tuples. Now ITR tuples, ITR tuples में जब भी हम आइटरेट करेंगे तो हमें एक, we will use only one variable name. Okay, why? Because इसमें क्या होता है कि वो सारा एक रो का वैल्यू एक साथ दिखा देगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। टपल हम कैसे समझेंगे, जैसे ये ब्रैकेट हमने दे दिया तो इट इज अ टपल, व्हाट इज इट, इट्स अ टपल। ओके, मैंने ये ब्रैकेट दे दिया तो इट इज अ लिस्ट, मैंने ये ब्रैकेट दे दिया तो इट्स अ डिक्शनरी। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, और ये सारे रो को एक साथ दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दैट, ओके आई विल आइटरेट। तो मैंने क्या किया, फॉर आई कॉमा जे इन df2 डॉट ITR टपल्स, सारा स्मॉल लेटर्स में, फिर मैं ये ब्रैकेट दूंगा, फिर ये कोलन साइन, सॉरी मैंने बोला था कि मैं एक ही वेरिएबल दूंगा, सो आई टेक ओनली वन वेरिएबल। अब प्रिंट आई करूं मैं, अब लेट्स सी द आउटपुट। ओके, नाउ सी द आउटपुट, ये जो ब्रैकेट में हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इंडिकेट्स दैट इट्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। आप देखो इसमें क्या दिखा रहा है कि सारे इसने रो का एक साथ दिखा दिया। ओके, फिर इसने क्या किया, सारे दूसरे वाले रो का दिखाया, जोन बी का, सिमिलरली इसके नीचे जोन सी का, जोन डी का। तो आप समझिए तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। द बेसिक डिफरेंस इज कि ITR आइटम्स क्या करेगा, ITR आइटम्स करेगा वर्टिकल, इट आइटरेट्स ओवर वर्टिकल सबसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इंडेक्स और सीरीज पेयर्स। फिर ITR रोज कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टली करेगा, ये क्या दिखाएगा, रो, इंडेक्स और सीरीज के फॉर्म में। और ITR टपल्स क्या करेगा, तो ये रोज पे करेगा और टपल के फॉर्म में रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव। अब मैंने दिखा दिया आई और जे हम लेते हैं ITR आइटम्स ITR रोज के साथ, ITR टपल्स में विल टेक ओनली वन वेरिएबल नेम। ओके, आई विल जस्ट सेंड यू
नाउ दिस प्रिंटिंग इंडिविजुअल कॉलम्स फ्रॉम अ रो। तो देखो मुझे इंडिविजुअल कॉलम, सपोज करो मुझे टारगेट और लोकेशन को प्रिंट करना है, ठीक है। टारगेट इज वन ऑफ द कॉलम्स एंड देन आई हैव गॉट लोकेशन। सो हाउ विल आई डू इट? ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपको कॉलम वाइज रिजल्ट प्रिंट करना है तो आई विल यूज दिस आईटीआर रोज फंक्शन। मैं क्या करूंगा, आईटीआर रोज, और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट जे, क्योंकि जे में हमारा देखो, जे में हमारा कॉलम का नाम रहता है और कॉलम का वैल्यू रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जे के साथ कॉलम नेम ले रखा है। So my question is, let's move to the question. Let me write it. We have to print column name, target, and location only. So what we will do? We will use ITR rows. We will use ITR rows. This is very much important. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं जरा दिखा दूँ कैसे हम करेंगे। तो एक बार लेट मी प्रिंट द डेटा फ्रेम df2। मैं जरा यहाँ पे लेट मी प्रिंट इट df2। सो मैं लूप चलाऊँ फॉर आई कॉमा जे इन df2 डॉट ITR रोज। मैंने बोला था कॉलम एक्सेस करना है, तो मैंने ये कोलन साइन दिया। अब मैं क्या करूँगा, कि आई जस्ट ट्राई टू एक्सेस इट। सो प्रिंट, मैंने यहाँ जे लिया। जे क्यों लिया? बिकॉज जे कंटेन्स द कॉलम नेम्स। फिर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया। फिर मुझे क्या करना है, टारगेट कॉलम प्रिंट करना है, तो मैंने टारगेट दिया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे मैं कॉमा देके एक स्लैश टी आई एम टेकिंग बिकॉज आई वांट अ सर्टेन गैप, एक टैब स्पेस का गैप मैं चाहता हूँ, दैट इज वाई। अगेन आई विल प्रिंट दिस लोकेशन, आई विल प्रिंट लोकेशन। So just give me a moment. Location I have printed. Okay. So let me hit enter. Now see this. ये टारगेट हमारा, मैं वैल्यू हाईलाइट कर रहा हूँ। 50,000 हैव कम, 67,000 आ गया, देन 80,000 हैव गॉट, देन 90,000 हैव गॉट। सो इफ यू लुक एट द आउटपुट हियर, सी हैव गॉट द आउटपुट। और लोकेशन वाले आउटपुट में भी अगर आप देखोगे, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पटना, so we got the location output as well. Okay, तो आप समझ गए, इट्स वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉलम रो वाइज देखना चाहता हूँ। मैं सपोज करो जोन ए और जोन डी का देखना चाहता हूँ, जोन ए और जोन डी का। आप यहाँ पे अगर आउटपुट देखोगे, जब आप ITR रोज कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वैल्यूज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आई वांट टू प्रिंट प्रिंटिंग इंडिविजुअल रोज फ्रॉम अ कॉलम्स। सो जब भी आप इंडिविजुअल रो करोगे तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ITR आइटम्स। दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर मैं रो प्रिंट करूँ तो ITR आइटम्स, अगर मैं कॉलम्स इंडिविजुअल प्रिंट करूँ तो ITR रोज। ओके, सो मैं देखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल माय क्वेश्चन इज आई वांट टू प्रिंट ओनली zone A row. So I will use ITR items function, ठीक है। So let's see how we will do it. Okay, let me type the code. So for I comma j in df2 dot ITR, फिर मैं क्या करूँगा, items मैंने बोला, ठीक है। Then I will do this print। अब मुझे क्या करना है कि देखो I में हमारा क्या है, give me a moment. I में we have got the row name. Okay, तो I में बेसिकली हमारा क्या है, कॉलम नेम होगा। तो मैं I नेम में यहाँ पे J करूंगा, J किया। अब मुझे रो नेम देखना है। रो नेम क्या होता है, क्योंकि J में दो वैल्यू स्टोर होता है हमारा, एक तो हमारा रो का इंडेक्स होगा या रो नेम होगा,
और दूसरा उसका वैल्यूज होगा, कॉलम का वैल्यूज। तो मैं जोन ए कर दूं, Z कैपिटल है, A is capital, so I'll use this. Now let me hit enter. Okay. So आप देखो, अगर मैं देखूं जोन ए, तो आप देखो ये वाला, ये इस तरह से जोन ए 50,000, 40,000 और दिल्ली, ठीक है। और हमारा क्या रहा है 50,000, 40,000 और दिल्ली। तो दिस इज हाउ विल राइट। यहाँ पे जे मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज आप अगर ITR आइटम्स करो तो आई में तो हमारा कॉलम रहेगा, पर जे में व्हाट वी विल हैव टू वैल्यूज। एक तो हमारा ये रहेगा दिस रो का नाम या रो इंडेक्स यू कैन से, और एक इसका वैल्यूज रहेगा, ठीक है। 50,000 देन 40,000, ओके, हमने देखा था। सो दिस इज व्हाई वी विल राइट दिस से जोन है। तो द क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे। अब MCQ में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर हम आइटरेट करते हैं डेटा फ्रेम पे तो व्हाट डू वी गेट। तो हम आइटरेट करते हैं डेटा फ्रेम में तो वी गेट कॉलम नेम्स। बोलेगा वर्टिकली अगर हमें आइटरेट करना है डेटा फ्रेम पे तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम ITR आइटम्स यूज करेंगे। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली आइटरेट करना है तो विच फंक्शन वी विल यूज ITR रोज। हमें अगर टपल के फॉर्म में रिजल्ट देखना है सारे रोज का एक बार में, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ITR टपल्स। अब सपोज करो कि क्वेश्चन पूछा कि नहीं मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन से फंक्शन को यूज करूंगा, ITR रोज को करूंगा। एंड दिस इज द द वे टू राइट दिस। अगर मुझे पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, ITR आइटम्स फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में विल सेंड यू द नोट्स एज वेल। I hope that you must have understood this ITR rows, ITR items, ITR tuples. So iterating over a data frame topic is over. So I'm just ending the session from my end. So that's it from my end. Thank you everyone for watching this.